everyone. So I have started one new initiative called New Horizon, where I will be sharing stories of those people who could not clear UPSC or other government exams, but now they are doing very good in their life. So the purpose of this initiative is not to discourage anyone to pursue government exams or any other exam, but to tell you about the life beyond these exams also, and if anyone wants to come out of this preparation, what all options they have. I strongly feel once you have given one or two dedicated attempts, then you should look out for some other options, because life is very big and there are many things beyond UPSC or other government exams also. So the first story which I am going to share with you all is of Aviral Khare. Aviral Khare gave 2 UPSC attempts and now he is a tax consultant in one of the big 4 consulting companies. I am not taking the name of the company as he wants to keep it private, but it is one of the big 4 consulting companies, and you may Google about it or you may be knowing about it. So it is a very high paying job. Also, many people dream of this job. So it is a very good job. So this was a brief introduction about him. In order to know his journey, how he transitioned out of UPSC and what he is doing right now, watch this full video. It is in the form of a podcast, and actually it is a conversation between him and me. So if you like this video, then please like, share and subscribe, and do comment your views so that I can make more such videos, and this will give me motivation to keep doing this. And thank you. So let me know your views in comments. What do you think? हेलो हेलो हाय ज्योति हाय हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? बस सब बढ़िया आप बताओ। हाँ, तो फिर ये हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग जो लोग ने यूपीएससी एग्जाम दिया है और अभी उनने वो छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, तो उनकी Right. जर्नी शेयर करने वाले हैं। तो Okay, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है और आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हो। Oh, thanks a lot. Thanks a lot. That means so much. तो थैंक चलिए यू। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, आप थोड़ा। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि सबको Sure. पता चल जाएगा आपके बारे में। Okay. I am Aviral Khare. I am currently residing in Bhopal and मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री दोनों इकोनॉमिक्स में करी है और मास्टर्स डिग्री क्राइस्ट से बैंगलोर से करी है। मैं अभी एसोसिएटेड हूँ एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म में एज अ टैक्सेशन कंसल्टेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन कंसल्टेंट। एंड मेरी यूपीएससी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2016 में, प्रिसाइजली 17 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स, एंड देन फिर से अटेम्प्ट दिया था इन 2021 along with other exams as well, along with UPSC। तो स्टार्ट तो ऐसे मेजरली ऐसे हुई है जर्नी की, जैसे हम लोग नॉर्मल घरों में बातचीत करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, इट्स अ ड्रीम टू परस्यू यूपीएससी एंड इट्स सो प्रेस्टिजियस जॉब। एंड मेरे नाना जी, ही वाज लाइक, I don't know exactly what we call that in English, but he was a Naib Tehsildar. Revenue yeah. Yes, exactly. So that started, and then मेरे father is a retired railways officer, वो भी government job रही है, तो एक वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में फैमिली की तरफ से वो रहता है। आया ही है। तो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन 2017। यूजी था मेरा बैचलर्स का लास्ट ईयर, और उसमें माय सिस्टर, शी वाज द मोटिवेशन एंड शी मोटिवेटेड मी कि ओके यू कैन परस्यू दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड ट्राई प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। तो उन्होंने ही, वो उस टाइम पे जॉब करी थी, उन्होंने ही मेरा इनरोलमेंट भी करवाया था एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, विच शुड नॉट बी नेम्ड राइट नाउ। या नॉट अ प्रॉब्लम। या देन वहां मैंने 1 साल प्रिपरेशन की अपने यूजी के एग्जाम के साथ, अपेयर किया। और मतलब इट वाज टफ, इट वाज रियली टफ। और प्रिपरेशन बहुत अलग रहती है क्योंकि यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव नेवर स्टडीड। तो मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट मेरे बैचलर्स में वाज विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो मेरा ध्यान और फोकस हमेशा उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा रहता था कंपैरेटिवली।
ना कि मुझे पहले सब मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हम बस पढ़ते हैं, बट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीजें हमको एकदम से एक्सपोजर मिलता है एंड देन वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दैट. सो दैट वाज वेरी न्यू. देन coming थोड़ा आगे, so 17 में I failed in prelims only, the very first day. Okay. And after that it was like I decided कि नहीं, I think मुझे masters करनी चाहिए bachelor's के बाद. So I went to Bangalore, I got enrolled in Christ. वहाँ मैंने अपनी masters करी. Masters इस पूरे दौरान मतलब इन पूरे 2 साल के बीच में मैंने UPSC के बारे में मैं सोचता था, there was always an इट्स इन माई हेड कि नहीं मुझे शायद करना है फिर से, पर एक कॉन्क्रीट डिसीजन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा था. सबका अपना एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है. देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू प्रिपेयर अलोंग विद इट, बट आई बिलीव लाइक क्योंकि क्राइस्ट का थोड़ा करिकुलम इज डिफरेंट एंड इट्स चैलेंजिंग. यू हैव टू मेंटेन 85% ऑफ अटेंडेंस एंड एवरीथिंग. So I decided कि okay, let's see later on, let's see what it was, because I thought masters के बाद भी there are other examinations which gets opened up for people like Indian Economic Services, UGC NET, जो लोग इस चीज के बारे में yes exactly. तो कुछ लोग PhD भी करना चाहते हैं. उस टाइम पे MPhil भी था, तो ये सारे ऑप्शंस में देखा. तो 2019 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया एंड आई गॉट प्लेस्ड विद वन ऑफ द बिग फोर्स. और उसके बाद मैंने जॉब करी 1-1.5 साल, और जॉब करते टाइम मेरे को फील हुआ कि नहीं, आई थिंक मतलब मुझे प्रिपरेशन एक बार फिर से करनी चाहिए आफ्टर द जॉब. मुझे एक बार फुल सजेड तरीके से अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे दिमाग में अटका हुआ था. तो आई स्टार्टेड अगेन एंड देन दैट वाज अ टाइम दैट कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट. एंड फिर मैंने पूरा फुल फ्लेजेड 1 साल 21 में अपनी जॉब को लीव करके बाय टेकिंग अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज इट वाज अ बिग कंपनी. Yes, it was a big company. It was an MNC, and then you have expectation from your relatives, from your family, from everyone in the society. Like it was a well-paying job, high-paying job, and yes, it was a good. Yes, absolutely. So leaving that, taking that leap of faith, and then coming back again to the preparation, knowing very well that you cannot, or you don't have that certainty attached to it, especially when you are coming from a middle class family. Yeah. So that I decided, and फिर उसके बाद में and again I failed. So whomsoever is listening कि if you really feel कि नहीं मुझे करना चाहिए, it's better to do it. I understand कि एक वो रह जाता है कि मन में रह जाता है कि हाँ नहीं कि ट्राई नहीं किया. At least give your best shot. If you think that you will be able to crack it, then fine. Right now I don't feel any sort of remorse or any sort of regrets कि अरे मैंने प्रिपेयर नहीं किया या मैं कर लेता या that was the journey altogether. That was it. Okay. So आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो you were preparing it along with your college के साथ ही, लाइक फाइनल ईयर में आपने वो स्टार्ट किया था. स्टार्ट कर दिया. हाँ, और फिर कॉलेज के साथ ही आपने वो अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद आपने ड्रॉप नहीं लिया था, सीधा मास्टर्स करने चले गए? नहीं, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था. मैंने ड्रॉप बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में या घर में डिस्कशंस भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा था नहीं, मैं ड्रॉप तो नहीं लूंगा. मैं सीधे ही मास्टर्स करूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी था. इकोनॉमिक्स हमेशा से मुझे पसंद है, तो ड्रॉप वॉज नॉट लाइक इन माई हेड टू गो फॉर अ ड्रॉप. तो फिर जब यहाँ पे 1 साल आपने आफ्टर जॉब दिया यूपीएससी प्रिपरेशन को, तो उसके बाद फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि अब मुझे इतना ही करना है, नाउ आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन? वो थॉट कैसे आया आपके मन में? ओके, सबसे पहले तो जो मुझे एग्जैक्टली लगता है कि एक ना आइसोलेशन फैक्टर आता है सबसे ज्यादा इस प्रिपरेशन के टाइम पे. तो यू नीड टू बी patient. I think that's the most important quality which people also feel, and I think तो ये थॉट मेरे दिमाग में आने लगा था कि आजकल जो टर्म बहुत ज्यादा है हम लोग यूज करते हैं बीइंग मिलेनियल्स या जेन ज़ी, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. यस एग्जैक्टली. तो मुझे ये बार बार ये दिखने लगा था कि ओके ठीक है, बाकी लोग बहुत चीजें कर रहे हैं, बाकी लोग बहुत ज्यादा स्किल्स नई डेवलप कर रहे हैं अपनी, ठीक है, और क्या मैं ये चीजों पे बहुत अच्छे से ये चीजें सीखना मुझे चाहिए या नहीं, एंड क्या मैं इन पे काम कर पाऊंगा, क्या मुझे वो टाइम मिल पाएगा. और
कई बार मुझे ऐसे सजेशंस भी आए कि बिकॉज यू हैव वर्कड इन अ कंपनी सच ऑफ दैट लेवल। मैं जानता हूँ कि कई बार मतलब कई लोग वैसी कंपनीज में अगर काम नहीं कर रहे तो वो सोचते हैं नहीं एक और ट्राई देते हैं या एक और चीज करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड ये भी आ गया था कि नहीं यार, क्योंकि मैं एक बार काम कर चुका हूँ वो भी उस लेवल पे, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि मेरे पास एक बैकअप हो। मेजरली द रीजन वाज द बैकअप कि नहीं, आई हैव टू कम आउट बिकॉज ऑफ बैकअप, एंड देन you have to accept the reality that you are not of like your level is not matching up to the expectation of the exam. So maybe that you have to accept. So acceptance is a big thing. Instead of going on it for 4 years, 5 years constantly, nahi. Perseverance is a good quality, but you have to be smart about it. That's what I felt. So that was a time I decided ki nahi, then I have to because there were other things also which were in my head ki nahi, okay fine, and majorly I started focusing on other exams as well, which were along with UPSC, which have similar syllabus. UPSC, yes, similar syllabus. That was the one exam which I was able to crack. I think we can discuss upon it. It was in Intelligence Bureau. So I appeared for the 2021 Assistant Central Intelligence Officer exam. So I cracked it like till the mains level. Finals mein I couldn't in the interview, and so like again repeating the same thing ki when I've taken the break, I've given these two exams. I have given major exams that time. तो when you realize कि अच्छा ठीक है मेरा इन चीजों में हो रहा है या इन चीजों में मेरे calculations when we do, so I decided कि ठीक है, now it's important that you get on with your life or you have to keep on moving to the right ahead. तो जब आपने जैसे कि बोला आपने आईबी का भी एग्जाम दिया था, तो फिर आपने ऐसा नहीं सोचा कि उसमें तो आपने क्रैक भी कर लिया था, आप मेंस तक पहुंच गए थे, तो वहां पे ये थॉट नहीं आया कि चलो एक और अटेम्प्ट देके देखते हैं क्या पता हो जाए? एज लिमिट, सो आईबी एग्जाम में द मेजर फैक्टर इज यू हैव टू बी 25 years old. I crossed that age. I would love to give the exam again and again for IB because you cracked, no, you something like आपको समझ आ गया कुछ उसका. So IB is see, obviously it is not of that level of UPSC, but I found it always interesting क्योंकि वो एक आजकल के शोज ने उसको उतना बना दिया है. और I think many people prepare also for these exams. Those who are preparing for UPSC, they also give those exams. तो बाकी लोगों के लिए भी ये मतलब हेल्प हो जाएगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं. करेक्ट. मेरे जो कलीग्स थे वो यूजुअली एसएससी के लिए प्रिपेयर करते थे, एंड अमंग दैट दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एसआई एंड ऑल दीज अदर पोस्ट्स व्हिच वर देयर, बट आई चोज आईबी बिकॉज मेरा एक इंटरेस्ट था क्योंकि 11th-12th में आई वेंट टू द कॉमर्स साइड, नॉट टू द एनडीए. तो मेरा एक हमेशा एक था कि ओके बिकॉज सर्विस का मन हमेशा रहता था, तो विच एवर वे पॉसिबल इफ आई कैन डू इट. So I thought to give that as well, and वो तब भी better था compared to like other experiences I had in UPSC. And मतलब ये आप मेरा ये कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने बहुत अपने कलीग्स को एस्पिरेंट्स को ये देखा है कि नहीं करना है तो यूपीएससी करना है कोई ना कुछ नहीं. और वो एक ना वैसे भी हो जाता है ना, मतलब पता नहीं ये मार्केट में लोगों ने ऐसा फैला के रखा है कि यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो बस यूपीएससी के लिए करो और प्लान बी भी मत रखो. नहीं, बस अगर प्लान बी रखोगे तो तुम वीक हो जाओगे, तुम्हारा ध्यान प्लान बी पे चला जाएगा. तो ये सारी चीजें मुझे तो सही नहीं लगती. आपको क्या लगता है कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, like when we prepare for UPSC वैसा? Honestly, it's very subjective. It's very subjective. If people who know their caliber or who are very well aware that what progress they are making, then but I certainly feel क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि साल में एक बार हो रहा है हाँ. और you have to keep your mind occupied and your mental strength is tested, your endurance is tested, everything in some other level, right? तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं बिल्कुल ही एकदम एग्जाम की जगह दूसरी चीज पर फोकस करो, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आधे से ज्यादा जो जनता है हमारे देश में वो मिडिल क्लास के लोग करते हैं, so it's always better for you to have an option. It won't harm you.
बल्कि वो स्ट्रेस कम कर देता है, मुझे लगता है। अगर एग्जैक्टली। आपके पास प्लान भी है ना, तो आप जब तक इसको कर रहे हो तब तक आप इसको अच्छे से करोगे। उसके बाद करेक्ट। आपको पता है कि आपके पास यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी। वरना हम्म ये करते करते भी ऐसा लगता रहता है कि क्या हम्म करेंगे, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसी टेंशन रहती है। हम्म। हाँ, मैं आपसे मतलब इस बात से हम्म अग्री करता हूँ, पर मैं हम्म वही बता रहा हूँ, मैंने कईयों को ऐसे हम्म को देखा है जो बहुत जिनमें वो रिस्क एपेटाइट थी, या जिनमें वो एक कहते हैं ना अंदर का जज्बा था कि नहीं हाँ, मैं करूंगा तो यही करूंगा, हाँ करूंगा, हाँ एंड दे हाँ, हैव क्रैक्ड इट। या क्योंकि उनका हम्म पूरा फोकस वो दोनों वे में वर्क कर सकता है, वर्कर, कई बार हाँ। मतलब इट कैन गो एनी वे। सो तो यू मोस्टली इट इज कैन, वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू yes, पर्सन वेरी yes, करता person है ये। person हाँ। to person. So हम्म for me, I wanted to take calculative risk. हम्म मतलब मेरे लिए I was not into that horizon कि हम्म नहीं, I can go all into it. For हम्म 1 year, I have completely gone into it. I have हम्म not seen the results. So हम्म then I decided to fall back on a corporate job. That was हम्म it. हम्म। तो आपने अब एक चीज बोली थी कि बहुत सारे Hmm. लोग होते हैं कि दे कीप गिविंग दिस एग्जाम बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। Yes. दे हैव दिस मेंटालिटी कि हमारे पास और कोई Hmm. ऑप्शन ही नहीं है, तो हम तो Hmm. एग्जाम ही देते रहते हैं, कभी ना कभी तो क्रैक हो ही जाएगा। Hmm. बट क्या ये सही है ऐसा? मतलब कि Hmm. ऐसा, जैसे आपने यूपीएससी के बाहर आके आपने Hmm. देखा कि यूपीएससी के बाहर Hmm. भी बहुत बड़ी लाइफ है, तो Hmm. ये जो मेंटालिटी लोगों की होती है, ये सही है क्या? अ, ये हम्म मुझे मेरे पर्सनल हम्म पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये हम्म सही नहीं है, हम्म क्योंकि वी आर लिविंग इन सच एन एज और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म स्पेशली वी आर सीइंग इंडिया ग्रोइंग लाइक एनीथिंग या एनीथिंग, ओके, एंड द जॉब मार्केट, आई अंडरस्टैंड कि हाँ लोग इज आर सेइंग कि, so but you have to make a calculation seeing the population as well and the youth and the या skills. स्किल्स, So हाँ, स्किल्स आर वेरी exactly, इंपॉर्टेंट, हाँ। yeah. So the major part is you have to work and realize कि हम्म भाई तुम्हारी डिमांड का है, मार्केट डिमांड हम्म कहाँ जा रही है. सो राइट नाउ यू आर सीइंग द AI एंड ML, लाइक जिस तरीके से अभी हम जब अभी आज हम बात कर रहे हैं, वी हैव डिस्कस सो मच अबाउट चैट जीपीटी, हम्म right? And the applications of such tools, such हम्म statistical tools, if you are good into it, like हम्म I'm speaking from an economics perspective, या अगर हम्म आपको पता है कि मैं MSc कर सकती हूँ, मैं कोई हम्म और कोर्स कर सकती हूँ, देर आर, आप फिगर आउट करो, NPTEL पे जाओ, स्वयं पे जाओ, ये पोर्टल्स हैं, फिगर इट आउट. यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. यू कांट, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम इस मामले में बहुत हाँ गड़बड़ है कि हाँ हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो जो गई कि है, नहीं हाँ। होनी है. हम्म आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म आप जॉब्स पे भी जब जाओगे, नोबडी इज गोइंग टू लाइक गिव यू द आंसर एकदम हाँ, सामने सामने, वो स्पून नहीं फीडिंग होगा, नहीं होने वाली है कहीं नहीं पे भी, होने वाली है, हाँ। वो नहीं होने वाली है. तो मार्केट है, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करो, इवन इफ यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट, try figuring out what kind of certifications you can do related to NISM. What, just explore even the website of NSE, BSE. Try reading the annual reports if you're coming from a commerce background. Try going to the management directors. ये सारी चीजों को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है, अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, लाइक मेरा ये मानना है कि जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके अंदर एक quality develop होती है, which is curiosity. क्यूरियोसिटी, हाँ। So you need to be curious about other aspects as well when you are reading so much. Like newspaper आप हर दिन पढ़ रहे हो, आप magazines, articles हर दिन पढ़ रहे हो. You are very well aware what's happening in the world, right? And the country. तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी करना पड़ेगी. पड़ेगा, जो भी न्यू चीजें आ रही है, क्या क्या चल रहा है. और There are sorry to interrupt you. आप कंप्लीट करो प्लीज. हाँ, मैं वही बोल रही थी कि आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अनकन्वेंशनल जॉब्स हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन उसमें मार्केट बहुत बड़ा है. तो उन सारी चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अवेयर रहते हैं, इतना हम पढ़ रहे हैं, तो उन सब चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है. बिल्कुल. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही कम्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओके, बट व्हेन ही सॉ कि यार उसका, यानी जैसा भी उसके हिसाब से उसको लग रहा था, ही वेंट इनटू अ फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ही ट्राइड एक्सप्लोरिंग UI and UX. व्हाट UI and UX? He started working as a like email marketer. उसने धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाए, सीखा, SEO सीखा, जो मुझे इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बिकॉज आई कम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड. बट आपको ये सब अब सीखो, टैली है, ये कुछ भी कोई भी सीख सकता है. और ये सारी चीजें ना, जैसे आप बता रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, ये तो कोई भी सीख सकता है, इसके इतने सारे कोर्सेज हैं मार्केट में.
हाँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए हाँ थोड़ी, हाँ अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें बैकग्राउंड लगती है या इसके भी बहुत सारे ऐसा नहीं है कि अब मान लो एकदम से हाँ देखो वो एफर्ट और वो टाइम आपको पुट इन करना पड़ेगा टू लर्न दी बेसिक्स। अगर मैं आज या आप पाइथन या आर प्रोग्रामिंग या कोई भी टूल सीखना चाहते हो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सो दैट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर श्योर, मतलब वो आपको लगाना पड़ेगा। मैं इस बात से उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मतलब आप बोल रहे हो ये भी कर लो ये भी कर लो, हाँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वो लगेगा, हाँ पर वो आपके लिए ही बेनिफिशियल इन द एंड टू हैव दो लेवल ऑफ स्किल्स। बिकॉज मुझे याद है मैं बीच में मैंने एनपीटीईएल पे एक बहुत अच्छा कोर्स था विच इज आई थिंक दे हार्डली चार्ज ₹1000, यू हैव टू चेक, या कई बार कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं उसमें होते हैं। हाँ, और वो मार्केट रिसर्च पे कोर्स था विच इज इन पॉपुलर डिमांड राइट नाउ। आई एम सीइंग लाइक इवन एज अ रिसर्च एसोसिएट मैं उन लोगों को स्पेसिफाई बोल रहा हूँ जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है या इंटरेस्ट है, और जिनको अच्छा, और जो थोड़ा मार्केटिंग की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, यू कैन फिगर आउट दोज कोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च विच आर स्पेसिफिकली देयर ऑन एनपीटीईएल। तो आई थिंक देर आर एवेन्यूज वेयर यू कैन सर्च। आज तो अब तो इतने ज्यादा प्राइवेटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मैं देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे यू हैव दीज टूल्स, और इंस्टाग्राम पे, सो रील्स के साथ साथ आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब हम आते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद बाहर, तो बहुत सारी हर्डल्स आती है हमें, कुछ भी चीज जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए। तो आपने वो कौन कौन सी हर्डल्स फेस की थी व्हेन यू डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन? Okay. The very first thing from our employers was कि you have a gap year, या you don't have you could have done certifications, which makes sense. Like उनका ऐसा था कि आपने पूरा टाइम डिवोट किया, और वो अगेन सब्जेक्टिव है। कुछ employers were okay with the fact that you were preparing for such an exam, and some were like कि नहीं when you already know the job market. So for me they were like कि अरे तुम तो ऑलरेडी काम करके आए हो, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि ये सर्टिफिकेशंस हैं, या ये चीजें हैं जिस पे तुम काम कर सकते थे साथ ही साथ, पर तुमने नहीं किया है। सो यू मेड अ चॉइस और यू मेड अ डिसीजन, राइट? तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जैसा अगर आपको पता चल गया है तो आप बाहर आ रहे हो, उससे बेहतर यही है कि लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो just meanwhile while you are preparing, do small internships if you can, remote internships if you can after the COVID era. I know कि अब restrictions हट रहे हैं, मतलब लोगों को बुलाया जा रहा है, but if you can find, there are actually I was going through LinkedIn, so there were 12 websites which allow you to work like remote work आपकी skills के level पे। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, it all based on research. So then आप देख सकते हो, और फिर आपको जो मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करोगे वो आपके स्किल सेट के ऊपर होगा कि आपने स्किल्स क्या डेवलप करी, या आप, क्योंकि कोई भी आपको जॉब मार्केट में ऐसे नहीं पिक करेगा, मतलब अनलेस एंड अनटिल आप कोई कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो, या बिग कॉलेज, हाँ आप बिग कॉलेजेस में हो, या आपने कोई ना कोई ऐसी डिग्री की है जो डिमांड में, कोई बंदा है जिसने MS स्टैटिस्टिक्स किया है, और उसको और सामने वाले एम्प्लॉयर को लग रहा है कि चलो यार ये एटलीस्ट डेटा एनालिसिस तो कर ही लेगा, इसने इतना तो पढ़ा ही है, ये गेम थ्योरी पे काम कर लेगा, चलो ठीक है मैं जॉब्स कहीं ना कहीं से इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ इसके स्किल्स को। तो आपको बस अपनी कोशिश ये करनी है कि आप स्किल सेट थोड़े डेवलप करो साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ साथ, और आपका जो एक सब्जेक्ट जो रहा है, जैसे किसी ने बी किया है तो बी के टेक्स रिलेटेड अगर आप कोर्सेज या सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो जैसे मैंने बताया आप NISM में कर सकते हो। तो साथ ही साथ, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, अगर आप बाहर आ भी रहे हो इस प्रिपरेशन से, इट वुड हेल्प यू, इट वुड गिव यू दैट रियलाइजेशन कि नहीं यार मैं मेरा कुछ तो कर लूंगा, मेरा कुछ तो स्किल सेट बना हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं टोटली, हम लोग जो बात करते हैं फाइनेंस में या इन्वेस्टमेंट में कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट टेक लाइक पूरा रिस्क एकदम से, तो वो आप एक फिगर आउट कर सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, और क्या होता है कि अगर जब हम यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब तक जैसे कि अभी 1 साल कोई दे रहा है, तो वो लोग ये सर्टिफिकेशंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं। लाइक एवरीडे आप अगर 1 घंटा भी दे रहे हो, तो
तो आप आराम से सर्टिफिकेशन कर सकते हो। बट ये है कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि कौन से सर्टिफिकेशन करने, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड और आपका इंटरेस्ट क्या है उस हिसाब से। फिर जब एग्जाम क्लियर पास में आने वाला होता है, जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, तब उस टाइम छोड़ दो, उस टाइम फुल फोकस एग्जाम पे करो। तो हाँ, तो ऐसे होता क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी हो जाते हैं और वो आप उसको जस्टिफाई भी कर पाते हो बाद में गैप ईयर्स को। मेरा एक और पॉइंट है, जैसे आप प्रीलिम्स आपको पता चल गया है, बहुत मैं जानता हूँ कि शाम में पता चल जाता है कि आप क्लियर करने वाले हैं या नहीं करने वाले। आधे से ज्यादा लोगों को शाम में पता चल जाता है, उनकी शिफ्ट के हिसाब से। तो अगर आपको पता चल चुका है ना, तो ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन 7 दिन घूम कर आ जाओ, फैमिली के साथ चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, टेक अ ब्रेक 10 days 15 days, as much as you need, at least 10 to 12 days, 2 weeks, then come back and then start. You can like take that time as well. अगर आपको पता है ना ये इस टाइम पर भी आप स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हो, आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा है। पर मैक्सिमम लोग उसी टाइम पे सोचते हैं, यार मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं शांति से बैठना चाहता हूँ, या मैं जॉब सर्च करूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, पर मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। ये फेज आता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को समझ भी नहीं आता कि अब क्या कर सकते हैं, कि अब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अब तक तो पता था कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ये करना है, ये करना है, अब पता नहीं आगे करना क्या है। तो वो जो फेज होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि और ऑप्शंस क्या है हमारे पास और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू यही पता चलेगा लोगों को एटलीस्ट कि आगे जाके कौन कौन सा ऑप्शंस है आपके पास और आप क्या क्या कर सकते हो। करेक्ट। तो आपने जब, जैसे कि आप ने डिसाइड कर लिया कि अब तो प्रिपरेशन से बाहर आना है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था व्हेन यू वर लुकिंग फॉर जॉब, की ऐसे एकदम आसानी से मिल गई या फिर क्या प्रॉब्लम आई जॉब ढूंढने में आपको? थोड़ा मिक्स था, मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यार टाइम लगेगा, या मेरे को शायद कोई लेगा ही नहीं। ये सबसे पहली फीलिंग क्रीप करती थी कि मतलब होगा क्या। सबसे ज्यादा डर यही लगता था कि यार, पर क्योंकि एक्सपीरियंस था 1 साल का, वही मैं जब बात कर रहा था कि कैलकुलेटिव रिस्क आप लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो आप करते कनेक्शंस बिल्ड करो। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो अपने कनेक्शंस बिल्ड करिए, आप लोगों को रीच आउट करिए, अपने रेज्यूमे पोर्टल्स पे अपलोड करिए, एंड विच अंकुर वारिकू टेल्स अ लॉट अबाउट। सो वो मेरे मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। हाँ, तो ट्राई कोल्ड ईमेलिंग, ट्राई द पावर ऑफ कोल्ड ईमेलिंग, बिकॉज बिलीव मी इट वर्क्स। इट वर्क्स। कोल्ड ईमेलिंग एंड लिंक्डइन पे मैसेजेस, ट्राई डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आपको लग भी रहा है, आपने जैसे आपको दिख गया, आपने स्किल्स ऐड कर ली हैं अपनी, तो मेंशन करिए। आप सिर्फ हाय हेलो हाउ आर यू करके मत मेंशन कीजिए। कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट। इन टुडेज टाइम नोबडी हैज दैट मच टाइम टू नो। फुल बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी जरूरत है, आपको जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन कर दो बस। करेक्ट एग्जैक्टली। जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेंशन कीजिए। अपना आपका अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो एंड ट्राई फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 10 days 11 days 12 days ट्राई फॉलोइंग देम, लाइक कि क्या हो रहा है, कि अगर मेरी एप्लीकेशन पे कुछ बात हुई है, नहीं हुई है, और नहीं भी आ रहा है तो डिसहार्टन मत होइए। मतलब कुछ अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा वर्क कल्चर और इंडिया का वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट। लाइक if you'll compare it, it's very different than what European countries and North American countries are following right now. Yes. Yeah, तो you should not expect कि अरे मैंने अभी किया है तो मेरे को अभी के अभी आ जाएगा। हाँ, just take your time. ऑल्सो अगर हम 100 जगह पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई ना कोई 1-2 इंसान तो रिप्लाई करेगा ही। तो ऐसा नहीं माइंड में होना चाहिए कि मैंने एक को किया, उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं दूसरे को नहीं करूंगा, वैसा नहीं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए माइंड में, क्योंकि अब हम जानते नहीं है कि वो दूसरा इंसान कितना बिजी है या फिर क्या चल रहा है। क्या पता उनके पास वैकेंसी ना हो,
कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसीलिए अगर 100 लोगों को कर रहे हैं, 1000 लोगों को कर रहे हैं, तो कहीं तो रिप्लाई आएगा, और हमारा क्या ही जा रहा है, हमारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है अगर उनको रिप्लाई कर रहे हैं तो। यूजुअली ऐसा भी होता है कि आपका ना हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए वो उस लेवल पे उस पे आपकी स्किल उस समय मैच ना करे। पर क्या होता है, रिक्रूटर ना आपका रेज्यूमे हमेशा डाउनलोड करके रख लेता है डेटाबेस में। तो हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है वो आगे से आपको अप्रोच कर, 2 महीने बाद आगे से अप्रोच कर ले अगर वैकेंसी आ जाए या कुछ और पोजीशन आ जाए। मेरे साथ हुआ है पर्सनल लेवल पे कि मुझे कई बार फर्म से आगे से कॉल आया है कि अरे क्या आप अभी इंटरेस्टेड हैं। मैं हमेशा उस चीज पे प्रॉम्प्टली उनको थैंक्स बोलता था और कहता था कि नहीं अभी नहीं है, बाद में देखूंगा या ऐसा। तो हाँ, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आई नो जॉब सर्च बहुत टायरिंग प्रोसेस है और बहुत ड्रेनिंग है, बहुत ज्यादा एंजाइटी ड्रिवन है, सच्ची बोलूं मैं। तो उस टाइम पे अपने आप को आप ऑक्यूपाइड रखो, कोशिश करो, और डोंट इतना ज्यादा भी मतलब वो मत करो कि आप सुबह उठ रहे हो, क्योंकि मैंने किया है पर्सनली। आप सुबह उठ रहे हो, आप लिंक्डइन चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को बैजर कर रहे हो जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मत करो। एक वो अपना डिसेंसी आप थोड़ा मेंटेन करके रखोगे तो भी ठीक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। पर हाँ, ये चीजें कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं और जो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरा तो यही कहना है कि जितने ज्यादा स्किल्स आप उस टाइम पे यूटिलाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है या मुझे ये चीजें नहीं है, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत हो रही है, यू नेवर नो, क्योंकि लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये स्कूलिंग में या कॉलेज में इतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेजरली मैंने मैनेजमेंट कोर्सेज में देखा है लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हुए, अपनी बेसिक एक्सेल स्किल्स पे काम करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट सूट जो है इन सारी चीजों। तो ट्राई डूइंग दैट। ऑल्सो ये सब चीजें जो हैं, जो कि जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी माइक्रोसॉफ्ट ये सब, तो ये बहुत ही बेसिक है। मुझे लगता है ये तो सबको ही आनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे इसको बहुत ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मैटर नहीं करता, बट मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर सोचो, अगर किसी का क्लियर भी हो रहा है, वो इंटरव्यू भी दे रहा है, तो उस टाइम पे भी उसको ये हेल्प करेगी ये स्किल्स। जैसे आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें इंटरव्यूज के वीडियोस रिकॉर्डेड हैं एंड दे आर बीइंग सर्कुलेटेड टू द जनरल मासेस। द रीजन बिहाइंड दैट कि यू शुड नो और यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली इन फ्रंट ऑफ द पैनल, राइट? वो ही मेन एजेंडा है कि क्या किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज। सो दीज आर सम सॉफ्ट स्किल्स which you need to work upon and you need to develop. It's not only specific to a government job. Yeah, it would help you in your daily life, dealing with people, interacting with people, and accordingly आपको फिर जैसे कॉर्पोरेट स्पेस में वहां तो बहुत ज्यादा ये चीजें ड्रिवन होती हैं और ज्यादा इन पे फोकस होता है। एक बार को हो सकता है आपकी टेक्निकल स्किल्स इग्नोर कर दी जाए, बट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर सीनियर्स, विथ योर जूनियर्स, how you're managing everything, that is very important. So you have to focus on them as well. और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है ना, तो आप किसी को भी कन्विंस भी कर पाते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि ये मेन मोटिव तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ये है ना कि आप क्या बोलना चाहते हो वो दूसरे इंसान को समझ आए। तो अगर आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो ये जैसे कॉर्पोरेट में बहुत हेल्प करता है कि आप दूसरों को कन्विंस कर पा रहे हो, मैनिपुलेट कर पा रहे हो, जैसे कभी कभी इसके लिए भी काम आता है। तो इसीलिए ये अच्छी होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इस पे अग्री करता हूँ कि कॉर्पोरेट में जरूरी है, क्योंकि मतलब हर लेवल पर मेरे हिसाब से, जैसे आपको ये बात समझ आनी चाहिए सामने वाले को। देखिए जरूरी नहीं है, हाँ लाइक हम लोग थोड़े कॉलोनियल उसमें हैंगओवर में आज भी जी रहे हैं कि इंग्लिश शुड बी द लैंग्वेज या इंग्लिश पे ही बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। वी आर दी ओनली कंट्री वेयर वी फोकस इज ऑन कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं। बट उसका रीजन एक और चीज जो मैं मतलब फोकस करता हूँ कि भाई यू हैव सो मेनी लैंग्वेजेस एज वेल, सो to find that common link, you have English. Somehow English unites us as well if we travel to different states. तो मतलब हाँ, ये बात ठीक है कि आप काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंग्लिश इज something which is needed. I would say it's needed right now. हो सकता है ऐसा टाइम आए कि ना हो, but I think it is needed. और जब तक हम दुनिया में यूके, यूएस कंट्रीज
are there, you have to deal with it. You can't Yeah. say, or you can't completely boycott these languages. Yeah, हाँ, because और you're not मोस्टली German. या और मोस्टली क्या हुआ है कि ये ना अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है. दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी कंट्री की बस Right. इंडिया में है या फिर यूके में है. पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कहीं पे भी इंटरेक्ट करना है तो ये इंग्लिश में ही मोस्टली पीपल इंटरेक्ट करते हैं. लेकिन Right. और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश भी ना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट पीपल हैव दिस परसेप्शन कि मतलब कि हमसे बोली नहीं जाएगी, या फिर पढ़ते तो सब लोग ही है बट दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस बोलने का. तो वो कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब बोलेंगे. तो Exactly. इसीलिए उसको इतना हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए उसके अराउंड की ऐसा है ऐसा है. और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो क्या ही है. आप लैंग्वेजेस जैसे आपके हैं, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो आप हिंदी को भी तो डील कर रहे हो ना. आप हिंदी की भी इतनी ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, राइट. हिंदी लिटरेचर को भी आप पढ़ रहे हो. आप महादेवी वर्मा की किताब सॉरी बुक्स पोएम्स को आप ध्यान दोगे, आप रामधारी सिंह के दोगे, आप क्या मतलब मेरे को जितनों के नाम याद अभी आ रहे हैं सॉरी, और मुंशी प्रेमचंद. तो आप उनको भी जब एक्नॉलेज कर रहे हो तो साथ ही साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ यूपीएससी ने अपने करिकुलम में कुछ सोच के ही वो लैंग्वेजेस डाली है. तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन इट टू ace the exam or to prepare for this exam. Yes. If you think कि हाँ मुझे ये करना ही करना है तो you cannot ignore them. Simple as it. तो ये तो हो गया कि आपका कैसा था एक्सपीरियंस जॉब का. तो अब जब आप जॉब कर रहे हो तो हाउ इज योर लाइफ नाउ, कैसा है मतलब. लाइफ हैज मतलब turned completely because you come from this kind of setting and this kind of experience आप जो सारे लेते हो लाइफ में, और फिर आप कॉर्पोरेट सेटिंग में आते हो, वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी चैलेंजिंग है. तो डोंट थिंक कि अच्छा सरकारी नौकरी मुझे चाहिए तो ये आराम है. मैं जितना सुन रहा हूँ दोस्तों से, कलीग से, सरकारी नौकरी भी उतनी ही चैलेंजिंग है. IAS IPS ऑफिसर्स से अगर आप बात करेंगे बहुत ज्यादा है. देयर इज नो टाइम लिमिट जो हम पहले बात ऐसा नहीं है. 9 to 5 जॉब तो वो बिल्कुल भी नहीं है उसमें. तो उसमें आप अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको एटलीस्ट हो सकता है कि आपको 2 दिन जो आपके अलॉटेड है वीकेंड के, वो आपको पूरे मिल जाए. कॉर्पोरेट सेटिंग में या बिल्कुल आपको लीव्स अलॉटेड हैं. आप अपने, और ट्रांसपेरेंसी है. अगर आप बात करेंगे कॉर्पोरेट में तो यू कैन इजिली इंटरेक्ट विथ योर मैनेजर, यू कैन इजिली इंटरेक्ट विथ सुपीरियर्स, और आप अपनी ग्रीवेंसेस को एटलीस्ट आप बोल सकते हो. और आप जहां तक आप चाहो तो HR से भी बात कर सकते हो. तो उस पर भी टेक हो सकता है. तो लाइफ बहुत ऐसा आप मत सोचिए कि नहीं कॉर्पोरेट जिस तरीके से, एक तरीके से मैंने खासकर गांव में तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो गांव में एक मेंटालिटी देखिए कि अरे प्राइवेट नौकरी है, अरे ऐसा है, अरे वो तो मतलब उसको नौकरी ही नहीं माना जाता है. बहुत ही उसको डिमीनिंग वे में देखा जाता है. बट इन दी एंड आपका लाइवलीहुड है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करिए, आप काम मेहनत से करिए. और इट डजंट मैटर मतलब अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो देयर आर सेवरल अदर एवेन्यूज विच यू कैन लुक फॉर. मतलब देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स. डोंट जस्ट थिंक कि मैं नहीं कर पाया हूँ, ये माइंडसेट से हटा दीजिए. मैं नहीं कर पाया हूँ तो मैं किसी और चीज के लायक नहीं हूँ, या मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ और क्योंकि यही सब कुछ था. ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और अगर आप ऐसे ही चीज में हैं, या आपको ऐसा लग रहा है, या आपको रियलाइज करवाया भी जा रहा है आसपास के आपकी सराउंडिंग ऐसी है, तो प्लीज इंट्रोस्पेक्ट. प्लीज देखिए आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सही दोस्तों से बातचीत हो रही है आपकी या नहीं हो रही है. आपके फैमिली मेंबर्स अगर भी कर रहे हैं तो ट्राई हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम. एस्टैब्लिश कीजिए कि ठीक है, आई फेल्ड बिकॉज वी ऑल विल फेल. समथिंग मुझे लगता है हर कोई हर जगह फेल करेगा. तो इट्स ओके. लाइक वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए. और हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा आपको लगेगा कि अरे मेरा ऐसा हो गया, वो उस टाइम बीइंग के लिए लगेगा, पर फिर आप ठीक हो जाओगे. आपकी एक नई जॉब बिल्कुल लगेगी, आप कोई दूसरी जॉब करोगे, आप कॉर्पोरेट में आ सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ब्लॉगर बन जाओ, आप यूट्यूबर बन जाओ. आपको कितने सारे ऑप्शंस हैं. आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं, वो आपके ऊपर आप करना नहीं चाहते हो, वो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है. अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर तो छोड़ दो. फिर सोचो कि हाँ करना क्या चाहते हो.
बट देन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके कारण नहीं हो रहा है, इस एग्जाम के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो इस एग्जाम में बैठे हैं, जिन्होंने बहुत लेवल्स तक क्लियर भी किया है, कईयों ने इंटरव्यू लेवल तक गए हैं एंड दे कुडंट get selected, or still they are living their lives happily, they are settled in some other positions or some other avenues or whatever they want to do right now. कुछ है freelancing कर रहे हैं, कुछ है पढ़ा रहे हैं. Most of them I have seen teaching and they are so happy and satisfied, and it's commercial as well. If you think नहीं पैसा नहीं बन रहा है, पैसा भी बन रहा है. पैसा भी बन रहा है, because if you want to be like, you need to be practical, you need money to survive in this world. So it's not like कि अरे नहीं मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी ही तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे. आप अगर ठीक है आप यूपीएससी नहीं कर पाए, हो सकता है आप टेट का एग्जाम निकाल लें, उसमें आप 50 to 60,000 यू विल बी स्टार्टिंग विद दैट पे स्केल. आप यूजीसी नेट निकाल देंगे, आप कोई और. तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिर से कंपटीशन में चले जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल. अब कई मुझे इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि यार नेट की तो भर्ती नहीं आती है, जॉब्स नहीं निकलती हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हो. प्राइवेट जॉब कर सकते हो आप एलिजिबल तो हो जाओगे ना एटलीस्ट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में. कितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, कंपटीशन है, सो यू हैव टू फेस द कंपटीशन. यू कांट जस्ट गिव एंड से एक्सक्यूजेस कि नहीं अब यहाँ पर ही है, तो हर जगह वो हर जगह. अगर आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट इज इजी, please come and figure it out. You're most welcome to do so. But you have to face that tune. You can't run away from it. That's the simplest explanation I can give. तो ये तो जैसे कंपटीशन तो ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है. कंपटीशन तो ये तो लाइक हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो उसकी वजह से कंपटीशन एक उसका क्या बोल सकते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है उसके साथ में हमें. हाँ, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज इजी नहीं है. अगर हम यूपीएससी करें या कुछ भी करें, कुछ भी इजी नहीं है. बट अगर जितना हमने एफर्ट यूपीएससी करने के लिए डाले हैं, वही एफर्ट अगर हम कहीं और डाल दें, उतने एफर्ट या फिर उससे कम एफर्ट भी डाल दें, तो भी ना वो क्लियर होने की ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है. लेकिन हाँ, लेकिन हमारा माइंडसेट ये हो जाता है ना कि हमें तो यही करना है, इसलिए हम यहाँ पे फुल डेडिकेशन से करते हैं. दूसरी चीज में ना हम हाफ हार्टेड करते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं होता है. बट अल्टीमेटली आपने जैसे बोला कि पैसे बहुत जरूरी होते हैं, और जब आप एक एज पे पहुंच जाते हो तो आपको पैसे कमाने पड़ते ही हैं. आप ऑलवेज डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे. आप कितने भी दिन करो, लेकिन पैसे का भी कुछ अरेंजमेंट कर लो. करेक्ट. और क्योंकि उससे फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि यू आर इंडिपेंडेंट, आप पैसे कमा रहे हो. देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है एरिक थॉमस करके. तो वो उनकी वो किसी चीज पे कोट कर रहे थे और उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वो एक बहुत अच्छा फंडा और लॉजिक समझा रहे थे कि लाइक ह्यूमन टेंडेंसी है या ह्यूमन नेचर होना चाहिए. वी क्रेव फॉर फ्रीडम. आप किसी से भी पूछो, वी क्रेव फॉर फ्रीडम. वी डोंट वांट मेनी थिंग्स, वी जस्ट वांट फ्रीडम होनी चाहिए. फ्रीडम, या कहीं पे भी जाओ, कोई भी जॉब करो, कुछ भी करो. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. तो आई डोंट बिलीव इन द नोशन ऑफ दैट कि मनी बाइज यू हैप्पीनेस, इट बाइज यू द लग्जरी ऑफ फ्रीडम फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रेम, राइट, टाइम फ्रेम कह लो आप, या जो चीजें आपको लग रही है, क्योंकि आप खुद के घर में रह रहे हो, आपको रेंट नहीं देना, फॉर्म ऑफ अ फ्रीडम, राइट. आप जॉब कर रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पे भेज पा, फॉर्म ऑफ अ फ्रीडम. कह रहे मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी तरीके से सेटल होगी. या खुद के लिए मेडिसिन यू विल बी एबल टू अफोर्ड इन योर ओल्ड एज, यू आर प्लानिंग, यू हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ मनी. सो ऑल दीज थिंग्स दे प्रोवाइड यू, राइट. एक फ्रीडम का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है. हाँ, अलग एक आपको इट गिव्स यू, आई फील सर्टेनिटी, एक स्टेबिलिटी आ जाती है. अच्छा ठीक है, कुछ बुरा भी होगा ना तो मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी. ये चीज ज्यादा काम करती है उसके बेसिस पे. तो मेरे हिसाब से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, एक एज पर आकर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखनी पड़ेगी. यू कांट रन अवे. योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, और इफ यू हैव somebody की जिसको आपको सपोर्ट करना है. कई बार मैंने कईयों को देखा है, कलीग्स को, सीनियर कलीग्स को, जिनकी फैमिली होते हुए भी और वो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम को. many people do that. हाँ, तो एक शायद एक एग्जाम्पल है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ. उन्होंने तो जॉब अपनी छोड़ी थी और उन्होंने अपियर किया था
और क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था इसलिए मेरे को याद आ रहा हाँ है। और अच्छा हाँ, तो मेरे को एक याद आ रहा है, वो अनु कुमारी जी थी ना, उनने लाइक शी वाज वर्किंग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था उनके पास। करेक्ट। हाँ, और एक बच्चा भी था 1 साल का, तो वो छोड़ के फिर शी प्रिपेयर्ड, बट अच्छा हुआ कि उनका क्लियर हो गया, तो वो अलग हो जाए। वो है, वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। हाँ स्टोरीज है, पर आप अपना बैकअप भी लेके चलो। मैं तो ये कहूँगा अपना बैकअप जरूर लेके चलो, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार पूरा टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग लगा दिया और आउटपुट कुछ नहीं आया। उनके में तो क्या था कि 10 साल काम किया उनने, तो उनका तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वो तो उनका बहुत अच्छा। और इवन उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि मैंने तो एसएससी वाले एग्जाम्स भी दिए थे। और अगर नहीं होता तो बैक ऑफ दी लाइक हर बैकअप ऑप्शन वाज कि टीचिंग में चले जाऊंगी। तो वो सारी चीजें सब लोग करते हैं डिसाइड, ऐसा नहीं है कि कोई सोचता नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। कोई भी जो कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब चीजें डिसिप्लिन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वीकेंड पे अगर नहीं है टाइम, मतलब मैंने बहुतों को सुना है कि अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, काम इतना है वो बस। तो इट्स अगर आप थोड़े भी, मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोशिश कर पा रहे हो 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ाई करने की, आई नो कि वो काम की, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं बहुत अच्छे से वो बात समझता हूँ कि हाँ, इट इज वेरी हार्ड टू रिकलेक्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days कॉन्स्टेंटली अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने काम पे। एंड इफ यू आर वर्किंग इन बिग फर्म्स, इन बिग कंपनीज वेयर यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, इट डिपेंड्स। मैंने कईयों को देखा है जो एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आप अगर एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हो जहां आप फ्री हो जा रहे हो आराम से 4 बजे 4:30 बजे, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आप बहुत आराम से प्रिपेयर करोगे, रिकलेक्ट भी कर पाओगे, टाइम मिलेगा। बट अगर आप एमएनसीज में हो, आप बिग बिग कंपनीज में, जहां आपको वो टाइम आपको स्क्वीज इन करना पड़ेगा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रेनिंग है और वो बहुत ज्यादा आपसे एफर्ट मांगता है। तो बी रेडी अबाउट इट एज वेल, और बी वेरी मच माइंडफुल अबाउट इट कि अरे यार देखो मेरा ये है और अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अभी इस टाइम के लिए मैं रुक जाता हूँ। मैं मास्टर्स के टाइम पे बहुत श्योर था, नहीं 2 साल मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस एग्जाम के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, मेरे को पढ़ाई करनी है 2 साल। हो सकता है मैं अपनी नॉलेज बेस बढ़ाऊं, विच हेल्प मी इन 21, विच रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन अ मच क्लियरर स्टेप्स। So it depends on you. It completely depends on you. ऑल्सो मेरे को लगता है कि बहुत सारे, देखो अभी जो टॉपर्स होते हैं हर साल, उसमें ना बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड्स के होते हैं हमेशा। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सबने फुल टाइम प्रिपरेशन करी है। बहुत लोग एग्जाम जॉब के साथ भी करते हैं। थोड़े लोग तो ऐसे भी हैं जो एकदम, जो कंसल्टिंग वाली जॉब होती है कितनी डिमांडिंग होती है, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, फिर भी उसके साथ भी। मैंने एक एग्जाम्पल है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, हार्ड वर्किंग ह्यूमंस करके, किसी को नाम होगा याद होगा तो पता नहीं। तो उनने ना, वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम कर रहे थे, वो उसके साथ उनने एग्जाम दिया और क्लियर कर दिया। तो वैसे बहुत लोग होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि लोग ना, ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल होना, कि उनको पता है कि हाँ नहीं, हम फुल टाइम नहीं कर सकते, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें वो करनी ही पड़ेंगी। तो अगर फिर भी हमें करना है यूपीएससी, तो वी विल डू इट अलॉन्ग विथ जॉब। हाँ, ऐसा नहीं कि फुल टाइम ऐसा। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल होके सोचना उस एग्जाम के बारे में। नहीं तो हम लोग इमोशनल होके ना फिर करते जाते हैं, नहीं तो अब तो हो ही जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा, ऐसे करके। तो हाँ, तो फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया हमने। तो अभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स related to your UPSC journey or preparation? No, absolutely not. Like मेरे को, क्योंकि believe me, it will literally make you a better individual. Somehow it will turn your personality, it will change your, mold your personality into something very different, and you'll experience it along the way.
with like when you will compare people or when you will see other people as well, whether it's work or in normal life, एक आपका सोचने का ना तरीका बहुत अलग हो जाता है, हाँ चीजों को देखने का, परसीव करने का, क्योंकि आप इतना दुनिया के बारे में पढ़ रहे जान हो, चुके हो, हाँ हाँ लोगों के बारे में पढ़ रहे हो, आपने फिलोसफी पढ़ ली है, एथिक्स आप पढ़ा है एग्जैक्टली आप एथिक्स पढ़ा है, आपने हाँ, सोक्रेट्स, प्लेटो को, हाँ, आप एरिस्टोटल को, इन सब लोगों को इतने डीपली फिलोसफिकल स्टाइल्स में समझ चुके हो, कैसे हाँ, ठीक है, हाँ, जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, हाँ, होने दो। हाँ, एंड तो मतलब रिग्रेट्स मुझे तो नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि ठीक है, अगर कई बार मुझे ऐसा बोला भी जाता है क्योंकि मेरी अभी भी एज है कि मैं अपेयर कर सकता हूँ, एंड यू नेवर नो कि मैं कर दूं, तो मुझे नहीं पता है क्योंकि आई स्टिल हैव ऑलमोस्ट 6 years टू स्टिल अपेयर फॉर द एग्जाम, बट देर आर एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। आपको भी बाद में, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं, हाँ फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं है, मतलब अगर आप मैं कर भी लूंगा तो उससे क्या प्रोडक्टिव निकल रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही उस चीज पे, वो नेगेटिव इमोशन है, वो मेरे ऊपर मुझको ही भारी पड़ेगा, अरे ये कर लेता, ये ज्यादा पढ़ लेता, ये ऐसे डील करता, काश इस तरीके से हो जाता या करता, it is amplifying your negative emotion, so it's better not to focus on that। हो गया है, ठीक है, जैसा है जिस हिसाब से है। अगर आप, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि उसने नहीं दिए एफर्ट, तो भी वो एक्नॉलेज कर लो कि भाई देखो मैं 70% दे पाया, हाँ मैंने नहीं दी 100%, मैं 70% दे पाया, हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी इतनी थी, मेरे अंदर इतना ही था, उसको एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, हाँ, वो किसी भी फॉर्म में कि ठीक है ये था, ऐसा था, अब क्या कर सकता हूँ, अब किस हिसाब से आगे बढ़ सकता हूँ, वो मुझे देख, दैट्स इट। So I don't have regrets, honestly। और मुझे लगता है ना, जैसे आपने बोला कि किसी ने अगर 70% नहीं भी दिया है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना क्या होता है कि अभी सोच के लग रहा है कि हमने 70% दिया, बट उस टाइम पे वो हमारे लिए 100% था, क्योंकि हम जब किसी भी चीज के लिए करते हैं उस टाइम पे भी, अगर किसी ने सोचो प्रीलिम्स कोई दे रहा है तो उसने उसके लिए फुल डेडिकेशन से पढ़ा होगा ना, और डिपेंडिंग ऑन उसको उस टाइम पे सिचुएशन क्या था, वो सिचुएशन को मैनेज करके फिर उस हिसाब से वो जितना टाइम निकाल पा रहा है, जितना कर पा रहा है उसने किया। लेकिन अब हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे वो सारी सिचुएशंस छोड़ देनी चाहिए थी, मुझे बस ये फोकस करना था, तो वो वैसा नहीं होता है, वो थॉट ही गलत है कि ना आप ऐसा सोचो कि आप और अच्छा कर सकते थे, तो ये ऐसा नहीं होता। जब हम जो भी चीज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम अपना बेस्ट ही देते हैं, अगर आप फुल डेडिकेशन से कर रहे हो तो। अगर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो अलग बात है, तो वैसे लोग तो फिर इतना सीरियस होते भी नहीं है ना, वो तो फिर कुछ और कर ही लेते हैं वो लोग तो। जो जो एकदम सीरियस होते हैं वही थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको वो थोड़ा वो आता है अंदर से, कि किया नहीं, किया नहीं या ढंग से नहीं किया, या इस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। जैसे मुझे हमेशा फील आता था यार मैं ज्योग्राफी में और मेहनत कर सकता था, आई वाज वेरी वीक इन ज्योग्राफी, सो आई ऑलवेज थॉट कि नहीं यार मेरे को ज्योग्राफी करना था और मैंने नहीं पढ़ा, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी शायद ढंग से नहीं पढ़ा, या वो आज भी आता है, बट आई टेंड टू अवॉइड इट कि नहीं ठीक है अब हो गया है, हाँ हो सकता है। अब आप हर सब्जेक्ट पे एस नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए ना। यूपीएससी खुद ही बोलता है इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब नहीं करना है, तुम बस इतना कर लो कि क्लियर कर लो। एग्जैक्टली। So sometimes doing the bare minimum, being a bare minimum guy, it's not always like wrong. It's okay. Yeah. तो फिर आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो इस एग्जाम से बाहर आना चाहते हैं, किसी भी स्टेज पे हैं अभी प्रिपरेशन के, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरा यही एडवाइस होगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपने एक स्टैंड लिया है, आप बहुत कन्विंसिंग वे में अगर आपने लिया है कि उस प्रोफाइल को समझिए, उस जॉब को समझिए, उसके साथ जो आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट टेक इट एज इन अ फैशनेबल वे, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, या डोंट फीड योर ईगो विद इट। यस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल डूइंग, सो डोंट फीड इट, बिकॉज इट्स बिलीव मी, इट्स अ सर्विस टू द country and to the nation. I know it sounds cliche, but it is, and it is also one of the most exploited form of jobs. We have evidences in front of us. मैं जिस सिटी से आता हूँ वहां पर भी ऐसा एक केस हुआ है, आई वोंट टॉक अबाउट इट, बट हाँ, तो टेक इट इन दैट फैशन कि हाँ आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं यही हूँ। पहले आप स्टडी कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो एग्जाम के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, जॉब के बारे में। डोंट go into that
perceived notion of the हाँ society कि अरे गाड़ी होगी, बंगला होगा, सरकारी नौकरी, नौकर. हाँ Please don't go into that. थोड़ा आप देख लीजिए आप क्या एड्रेस करना चाहते हो. मेरे लिए बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था कि सीइंग द पॉवर्टी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर वही था, क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा जो निकला है इटारसी में और देखते हुए, हाँ गवर्नमेंट जॉब रही डैड की, पर मैंने जो आसपास देखा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था. तो फोकस ऑन दैट एंड देन एडवाइजेस की साथ ही साथ अपने स्किल्स आप डेवलप कीजिए. आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं. आर हो गया, पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग, कोडिंग. इफ somebody is not interested in coding, there is other courses as well. डिजिटल मार्केटिंग कर सकते Yes, हो. डिजिटल मार्केटिंग वो हाइप है, बट लाइक आप किसी और पे भी जा सकते हो. उसमें भी ना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं छोटी छोटी, Right, जैसे exactly. आपने बोला था ना ईमेल मार्केटिंग, फिर वैसे वैसे हैं, तो उसमें से कोई एक चीज भी सीख लिया तो भी वो बहुत हेल्प करते हैं. उसके बाद यू कैन बिल्ड अपॉन इट धीरे धीरे. हम मेरे हिसाब से हम वही एड्रेस कर रहे हैं. मतलब आप और भी बहुत आप साइकोलॉजी के कोर्सेज कर सकते हो. मैंने कई फ्रेंड्स अपने देखे हैं जिन्होंने अपना बीइंग एन इकोनॉमिस्ट दे हैड द इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजी. आप उसमें जा सकते हो. आपको थोड़ा आप एचआर में, पब्लिक रिलेशंस में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज which will add on to your skills somehow or the other. I understand very well कि हाँ यार इंडिया में हमारा सिनेरियो ऐसा है, सी डिसअपॉइंटिंग है, बट है कि डिग्री देखी जाती है कि आपकी डिग्री कहाँ ज्यादा है वैलिड. पर अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप कर रहे हो साथ ही साथ ये चीजें भी और आप सही जगह पे कह रहे हैं ना, आप सही जगह पे टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे. तो एडवाइस बस यही है कि अगर आप सक्सीड हो रहे हो उस एग्जाम में तो बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं. और अगर आप नहीं भी हो रहे हो तो ट्राई फिगरिंग आउट other things as well, because there are options available right now in our generation. There are ample amount of opportunities. ये नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है. हाँ, आपके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अभी भी पूरा खुला हुआ है. भले आप उसको जितना भी डेविलिश या डिमीन करना चाहते हो, बट इट विल गिव यू अ लाइवलीहुड फॉर श्योर. इट विल गिव यू बहुत सारे बेनिफिट्स एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि आप अच्छा कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. बीकॉम की डिग्री लेकर भी आप एमबीए को परस्यू कर सकते हो. आप एमबीए तो मतलब एक ऐसी चीज हो गई है कि बहुत सारे लोग उस पे जाना ही चाहते हैं. मैंने मैक्सिमम इंजीनियर्स को देखा है जो मैनेजमेंट और जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, एंड they do it amazingly in finance because of their tech background and quantitative aptitude. They have that brain for stock markets, and I've seen many friends of mine जो tech background से हैं और जिन्होंने shift किया है finance में, जिन्होंने CFA pursue किया है. मैं कहना चाहूंगा there are courses, I don't know, बहुत सारे BCom students हैं या जो 12th pass out कर रहे हैं. Please search on courses such as ACCA, CFA. ये मैंने नहीं किया था जब मैं 11th-12th में कॉमर्स था. आई ओनली हर्ड अबाउट CA. ठीक है. इफ यू आर, आई नो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेज, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, CFA, ACCA एंड ऑल दैट, बट ट्राई एक्सप्लोरिंग दीज. मतलब ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं. देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज एज वेल. मुझे भी बहुत लेट पता चला, बिलीव मी. मतलब जब मैं वर्क करने लगा मुझे बाद में पता चला कि अच्छा मेरी लाइन में भी डिप्लोमा कोर्स होता है. मुझे नहीं पता था. तो यू कैन एनी डे यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट फेज जो आप जिसमें आप अगर अभी हो कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से सिविल्स नहीं होगा तो मैं अब लाइफ में क्या करूंगा आप रिसर्च स्कॉलर्स बन सकते हो. बिकॉज यू हैव डन सो मच, यू कैन अप्लाई टू दीज एलीट इंस्टीट्यूशंस, IITs, NITs, ISB. यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं लिंक्डइन पे फॉर रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च. मतलब आप रिसर्च में कर सकते हो क्योंकि आपने इतना रीड किया, आपको इतना नॉलेज है. यू कैन अप्लाई. आई हैव फ्रेंड्स जो IIMs में रिसर्च वर्क कर रहे हैं साथ ही साथ, या कुछ अलग एग्जाम्स क्लियर करते हैं. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. ऑल्सो बहुत सारे NGOs के साथ काम कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस में कर सकते हो. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. और अभी इंडिया का भी ना जॉब मार्केट चेंज हो रहा है. जैसे पहले जैसा था ना कि ओनली या तो गवर्नमेंट जॉब है या तो फिर प्राइवेट है. अभी बहुत सारी अनकन्वेंशनल जॉब्स भी आ रही है, जो जैसे कि फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन दीज डेज. लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं फ्रीलांसिंग करके. That's true.
पर और क्या है, हाँ हम उस चीज पे ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, थिंग इज दिस की सिक्योरिटी नहीं है ना उसमें, जॉब सिक्योरिटी नहीं सिक्योरिटी है। नहीं। हाँ, हाँ। सिक्योरिटी नहीं है। मैं भी एक हैं, वो बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, वो यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने वो अपने जर्नी बताती रहती है, मैं फॉलो करता हूँ उनको। हाँ हाँ वो यही बताती रहती है कि शी इज जस्ट ट्रैवलिंग सिटीज। अभी वो उन्होंने कुछ 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था कि शी लेफ्ट आई थिंक 2-3 जॉब्स, और उनके एंड शी वाज I don't know exactly, but she was very good. She worked in DRDO, I think, और ओके। हाँ हाँ उन्होंने अपनी जॉब को की क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था या जो भी था, एंड उन्होंने शुरू किया फिर, और ट्रैवल कर रही हैं अब। मतलब जो भी उनके प्लान्स हैं वो हैं, बट आप ये मत सोचिए कि ठीक है अब स्टैग्नेंट हो गया है या ग्रोथ नहीं है या मैं क्या करूं। हाँ, वो देखिए ये सारे फैक्टर्स जरूर आएंगे कि मेरी ये एज हो गई है, मेरे साथ बाकी दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे ये कर रहे हैं, ये फैक्टर हिट करेगा आपको, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको बार बार रियलिटी है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये तो रियलिटी है ही, ये तो ऐसा चल ही रहा है, तो इसको तो हिट करेगा ही, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स के तौर पे देखना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपने सिविल की प्रिपरेशन करते टाइम आपने एक्सेप्ट करी है। तो यू कांट, अब जैसे मेरे कई दोस्त हैं, दे आर डिप्यूटी मैनेजर्स, दे आर असिस्टेंट मैनेजर्स, और दे आर मैनेजर्स सीनियर, कुछ एक शायद दोस्त है वो सीनियर मैनेजर भी बन गया है जल्दी। तो दैट इज लाइक वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, बिकॉज दे चोज अ डिफरेंट पाथ, पर आपका अलग है, आपका भी अपने टाइम से हो जाएगा। So be positive about it. That's what in the end I'll say, and please explore, research is the key. मैं मानता हूँ ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारी बातचीत में, बट रिसर्च इज दी की। आप अपने जैसे आप सोच लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि मुझे ही करना है, तब ठीक होने लगेंगी चीजें, बिलीव। ठीक है, तो फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ज्योति, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज माय प्लेजर कि आप आए और टाइम निकाला बात करने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। या।